बढ़ेंगे आगे और बात करेंगे राहुल गांधी के एक बयान ने फिलहाल राजनीतिक सरगर्मी बढ़ा दी है। दरअसल राहुल गांधी ने आरएसएस को लेकर के एक बड़ा हमला बोला है और कहा है कि नए सैनिक स्कूलों पर आरएसएस का कब्जा है। राहुल गांधी के इस बयान के बाद सरकार की ओर से स्पष्टीकरण भी दिया गया है। राहुल गांधी के बयान से बवाल मचा हुआ है। राहुल गांधी ने क्या कहा है वो भी हम आपको सुनाएंगे। राहुल गांधी के बयान का किस तरीके से विपक्ष के नेता समर्थन दे रहे हैं और बीजेपी राहुल के बयान को कैसे काट रही है वो भी हम आपको सुनाते हैं। The thinking of the Prime Minister and behind the thinking of his colleagues and particularly the RSS is a very dangerous and caustic idea. The idea that this country is not an expression of the many. In the constitution it's clearly written, India, that is Bharat, is a union of states. A state is an expression of the people of India. When we say Tamil Nadu, we are not just saying empty words. Inside those words is the history of the Tamil people, the language of the Tamil people, the pain, suffering, happiness of the Tamil people. And so the constitution says that every state represents one history, one tradition, one language, one expression of our people. And so every single state has the right to that expression. Every single state must be treated fairly. And when I spoke of consistency, when I said Mr. Vaiko is a consistent politician, the one thing that he has defended all his life is the aspirations, the dreams, the imagination of the Tamil people. Tamil language, the future of Tamil Nadu, the suffering of Tamil Nadu, and that is really what India is about. Every state has the right to express itself. Every state has the right to its own culture, the right to its own history, the right to its own language. And here we have suddenly some ignorant people who don't understand the Tamil language, who don't understand the Tamil people, who don't understand the Marathi people, who don't understand the Bengali people, who don't understand the people from Kerala, and say no. None of these histories are relevant. None of these imaginations are relevant. None of these languages are relevant. The only language, the only history that's important, relevant, is the one ascribed by the RSS. And this is really what the fight is about. This is why the students are outside. Because India will never accept, will never ever accept any of its cultures, any of its languages, any of its histories to be trampled by anybody. And that is what really all the people on this stage do. They defend the idea of India in their own way, in their own state, in their own way, with their own imagination. यदि देश का इतिहास डिफेक्टिव लिखा गया, मुगलों के द्वारा लिखा गया, अंग्रेजों के द्वारा लिखा गया, कांग्रेस की विकृत मानसिकता ने आने वाली जनरेशन को गलत बात पढ़ाई है, तो उसमें सुधार होना ही चाहिए। यदि इतिहास गलत है तो सही इतिहास आने वाली पीढ़ी के सम्मुख होना चाहिए। इसमें गलत क्या है? गलती को सुधारना कोई गलती नहीं है। रही बात राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की, तो संघ पिछले 100 साल से मौन साधना करके इस देश में हजारों लाखों करोड़ों देशभक्त अनुशासित उन कार्यकर्ताओं को, उन व्यक्तियों को खड़ा कर रहा है जो देश के लिए जीना भी जानते हैं और मरना भी जानते हैं। ऐसे संगठन का सदस्य होना हमारे लिए फक्र की बात है। आरएसएस को गाली निकालने से कुछ नहीं मिलेगा। इनके नाना ने, इनकी मम्मा ने, सब ने
संघ को बहुत गालियां निकाली, संघ पर कई बार प्रतिबंध लगाया, 1948 में लगाया, इमरजेंसी में 95-75 में लगाया, 92 में लगाया। हर बार संघ अपनी मौलिक शक्ति से जन समर्थन हासिल करते हुए 4 गुनी ताकत से उभर कर निकला है। मैं राहुल गांधी जी के बयान का 100% समर्थन करता हूं। राहुल गांधी जी ने वही कहा है जो सच। मैं स्पष्ट कर दूं कि भारतीय जनता पार्टी परिवार, उससे जुड़े संगठन, जो मातृ संगठन उनका, ये बिल्कुल वैसे ही आचरण कर रहे हैं जैसा अंग्रेज करता था। अंग्रेज हिंदू मुसलमान में मतभेद पैदा करके देश की आजादी के संघर्ष को कमजोर करता था। भारतीय जनता पार्टी भी हिंदू मुसलमान के नाम पर देश को बांट रही है, जिससे उनके खिलाफ संघर्ष कमजोर हो जाए, पूंजीवाद के खिलाफ संघर्ष कमजोर हो जाए, जिस तरह वो लूट रहे हैं उसके खिलाफ संघर्ष तैयार है। गांधी जी ने सबको एक किया था। आज कांग्रेस पार्टी भी यही चाहती है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई मिलकर देश की विकास की लड़ाई लड़े, और जो देश को तोड़ने वाली शक्ति भारतीय जनता, खासकर जब संसद का सत्र चल रहा हो तो ये जिम्मेदारी होती है कि वो संसद जाए, बहस करे, तथ्य दे, जो मुद्दे जनता से जुड़े हैं संसद के पटल पे रखे। लेकिन आप ये देखिए, भारत का दुर्भाग्य है कि भारत का नेता प्रतिपक्ष लोकतंत्र के मंदिर से ही दूर भागता है। उसको डर लगता है। मैंने शुरुआत में कहा था, अपरिपक्व, पार्ट टाइम, गैर जिम्मेदार, और मैं पुनः दोहराता हूं। कल एक पब्लिक फंक्शन में राहुल गांधी जी का वक्तव्य है और वो अपने उसी गैर जिम्मेदाराना अंदाज में कहते हैं, प्रधानमंत्री जी कौन होते हैं कि छात्रों को माफ करें। और उसके बाद वो कहते हैं कि भाजपा और आरएसएस की सोच जहरीली है। तो मैं ये जानता हूं, जैसे भारत के 140 करोड़ भारतीय भी जान गए हैं कि राहुल गांधी को मोदी फोबिया और आरएसएस फोबिया है। जिनकी लकीर नहीं मिटा सकते और अपनी बढ़ा नहीं सकते, तो केवल इस तरह के अनर्गल बयान देना, बार बार कहना, जहरीली सोच। तो मैं राहुल गांधी से एक बात जरूर कहना चाहता हूं। राहुल गांधी जी, जहरीली सोच तो वो है जो कांग्रेस पार्टी की सोच है। जाकिर नायक से 50 लाख की रिश्वत ले ली। जहरीली सोच तो वो है राहुल गांधी जी जो चीन से एमओयू करके छुपा के दबा के रखती है और ये भी नहीं बताती भारत की जनता को कि उस एमओयू में क्या है। जो राजीव गांधी फाउंडेशन में चीन से घूस ले लेती है, वो है जहरीली सोच राहुल गांधी जी। जहरीली सोच राहुल गांधी जी वो है जो नेता प्रतिपक्ष होकर विदेशी भूमि पर जाता है और कहता है भारत का लोकतंत्र मर गया है। जिस लोकतंत्र ने राहुल गांधी को नेता प्रतिपक्ष बनाया, उसी भारत को, उसी लोकतंत्र को बदनाम करने की सुपारी अगर किसी ने ली तो राहुल गांधी जी ने ले रखी है। जहरीली सोच वो है राहुल गांधी जी जब आप झूठ बोलते हैं विदेशी धरती पर और कहते हैं हमारे सिख भाई पगड़ी नहीं पहन सकते भारत में, वो कड़ा नहीं पहन सकते। और जहरीली सोच वो है राहुल गांधी जी जो अपना ईमान बेचकर देश विरोधी वक्तव्य दे, जॉर्ज सोरोस की कठपुतली बन जाए, उस व्यक्ति का नाम राहुल गांधी है। नहीं, उन्होंने तो ये भी कहा कि आरएसएस खतरनाक है। मुझको लगता है कि आदरणीय राहुल गांधी जी को अभी अध्ययन की जरूरत है, उनमें और अधिक परिपक्वता आए, इसकी भी आवश्यकता आज बहुत ज्यादा है। उनके पूज्य नानाजी के समय परेड में आरएसएस शामिल हो सकता है, तब वो देशभक्त और राष्ट्रभक्त था।
शताब्दी का एक इतिहास है आरएसएस का, और इस शताब्दी के उसके इतिहास में राष्ट्र सेवा, सामाजिक समरसता, आपदा राहत, शिक्षा, सेवा कार्य, ये उसका आराधन रहा है, उसका मुख्य काम रहा है। और इसको अगर आप खतरनाक मानते तो आप अच्छा किसको मानते हैं? आपका ऐसा बयान करोड़ों स्वयंसेवकों के भावनाओं को आहत करता है। राहुल जी, अगर आप राजनीतिक ध्रुवीकरण के लिए कोई चीज कह रहे हैं या किसी धर्म विशेष की तुष्टिकरण के लिए कह रहे हैं, वो अलग बात है। अगर आप इसको सिद्ध करना चाहते हैं तो आपको जनता की सेवा, विकास और राष्ट्रहित की राजनीति आप करना चाहते हैं तो आपको आरएसएस का अध्ययन करना होगा। और आपसे मेरा बार बार हमेशा आग्रह रहता है कि आपके पास अगर ठोस प्रमाण हो तभी आप सार्वजनिक चर्चा किया करिए। बगैर प्रमाण के गैर जिम्मेदार बयानों से जो लोकतांत्रिक जो मर्यादाएं हैं वो भंग होती हैं। और लोकतंत्र में असहमत का उत्तर तो तर्क से दिया जा सकता है, लेकिन अपमानजनक जो विश्लेषण है राहुल गांधी जी के, जिनमें उपद्रवीय भावना की, अराजक संभावनाओं की एक बू आती है, उससे उनको बचना चाहिए। सर, इसी में उन्होंने आगे ये भी कहा है कि जो आरएसएस है वो सैनिक स्कूल के तमाम ऑर्गेनाइजेशन। अरे आप क्या जानते हो, आप तो इतना विदेश का दौरा करते हो, आप तो हर रात। अब ये अलग बात है कि आप स्विट्जरलैंड और थाईलैंड और कहां कहां होके आते हो, वो अलग विषय है कि आप किन देशों की करते हो, ये मैं नहीं कह रहा हूं। आप जिन भी देशों की कह रहे हो, अध्ययन करके आपको आना चाहिए कि स्कूलों में सैन्य शिक्षा भविष्य का सैनिक, भविष्य का रक्षक और राष्ट्रभक्ति के प्रति, राष्ट्र के प्रति भक्ति भावना का सृजन करने वाला होता है। सैनिक स्कूल अगर सरकार किन्हीं कारणों से, चाहे धन का अभाव हो या एक और अधिक कुशलता चाहता हो, वो सैनिक स्कूल प्राइवेटाइजेशन क्षेत्र में आता है तो उसमें हर्ज क्या है? आप तो अपने देश के निजी क्षेत्र के व्यवसायियों पर विश्वास क्यों नहीं करते? आपको विदेशी कंपनियां तो पसंद है, लेकिन देसी कंपनियों में या देसी कोई स्कूलों के संचालन में कोई आगे आता है राष्ट्रहित में, तो आपको पीड़ा क्यों हो जाती है? सैनिक स्कूल ज्यादातर आप इजराइल में देख लो, आप अमेरिका में देख लो, आप जो बड़े देश रशिया में देख लो, आप जर्मनी में देख लो, निजी क्षेत्र के उसमें सैन्य प्रशिक्षण के अलावा आधुनिक शिक्षा भी दी जाती है। वही चीज भारतवर्ष में हमारे, और ये एक बहुत बड़ा और अच्छा सामरिक दृष्टि से भी और एक रक्षा के संदर्भ में भी और एक युवाओं के सर्वांगीण विकास के लिए अनुपम उदाहरण। आरएसएस का जो संगठन है वो एक इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स से आज भी ग्रसित है, क्योंकि पूरा देश, ये मैं समझता हूं कि पूरे अंग्रेजों के विरुद्ध स्वतंत्रता आंदोलन की लड़ाई में पूरा देश इन्वॉल्व था। आरएसएस उसमें अंग्रेजों के साथ खड़ी थी। भारत छोड़ो आंदोलन, जैसे क्विट इंडिया मूवमेंट में भी आप उठा के ले, जो सबसे महत्वपूर्ण रहा है, इसमें भी हमारे आरएसएस के जो संगठन के लोग हैं वो अंग्रेजों के साथ खड़े थे। वो जो हमारा आन मान शान तिरंगा झंडा है अपने मुख्यालय में उन्होंने फहराया नहीं है, वो संविधान के साथ खड़े नहीं है। राहुल गांधी जी ने उन्हीं बातों को कहा कि जिस प्रकार आरएसएस के लोग, चाहे विश्वविद्यालय हो, चाहे बड़े बड़े संस्थान हो, उनकी पात्रता क्या है? उनकी पात्रता या उनकी योग्यता केवल यही है कि वो संघ के प्रचारक रहे हैं, वो पूर्णकालिक रहे हैं, संघ के कार्यवाह रहे हैं। ये उनकी मैं समझता हूँ योग्यता रही है। यही ये कारण है कि हर जगह पे वो आरएसएस के लोगों को कहीं न कहीं नियुक्त कर रहे हैं, और नतीजा ये हो रहा कि पूरे इतिहास को भी बदलने का वो प्रयास कर रहे हैं। राहुल जी ने इन बातों को इंगित किया है।